to all in a pen and canvas classes. हम यहाँ NCERT बायोलॉजी का सिलेबस फिनिश कर रहे हैं and we have already taken a part 1 of life process in which we have discussed about the introduction of the life process and few important points of life process. And today we start a mode of nutrition and nutrition in human being. So let's start. So previous class में we have seen nutrition. Nutrition is a process by which organisms obtain and use food for growth, energy, repair and maintenance of life. Now the mode of nutrition. Depending upon the organism, the mode of nutrition is different in different type of organism. First one is autotroph. Autotroph are the organisms who make their own food, use inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. So the one who make their own food, that mode of nutrition is known as autotrophic nutrition. And these are fulfilled by the process known as photosynthesis. Now what is photosynthesis? Process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them in the form of energy. आउटसाइड से क्या लेते हैं CO2 एंड H2O और कन्वर्ट किस में करते हैं कार्बोहाइड्रेट में वो तो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं दे आर यूजिंग द प्रोसेस और photosynthesis they make their own food and they uses inorganic sources for their food और उनको बाहर से किस चीज़ की ज़रूरत होती है CO2 एंड H2O की और उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में दैट carbohydrate is not be used simultaneously or immediately by the plant so it is stored in the storage organ in the form of starch and that is known as internal energy. Now next one is during the process of photosynthesis what product is there. Okay, with the process of when they take the outward source or the outside source carbon dioxide and H2O, then what will happen? Glucose is formed, that is the 6 carbon element, that is C6H12O6 plus 6 CO2 and H2O. This is the word equation of photosynthesis. इसको word equation बोलते हैं. तो मे बी इन द एग्जाम इट विल कम लाइक कि 6 CO2 दे दिया then plus then the dash is there so you have to fill the water with the correct equation with the back you have to do the balanced equation then C6H12O6 is a glucose that is a carbohydrate form में रहती है and 6O2 and 6H2O. Then what are the event take place during the process of photosynthesis? क्या क्या चीजें होती है? So it is easily understand by the help of the word equation of the photosynthesis. Absorption of light energy from chlorophyll, and this is used chlorophyll. Absorption of light energy कहाँ से use होती है? Chlorophyll से, ठीक? In the presence of chlorophyll and sunlight. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन होती है लाइट एनर्जी की किसमें केमिकल एनर्जी में absorption of light energy from chlorophyll conversion of light energy to chemical energy and splitting of H2O molecules into H2O and O2 reduction of carbon dioxide into carbohydrate कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किसमें होता है C6H12O6 में तो carbohydrate that is glucose. Next, after the completion of the photosynthesis, there is an activity 6.1 and 6.2. 6.1, they use a variegated leaf which they shown before and after starch test.
Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch get used up. 3 दिन के लिए उन पत्तियों को, उन पेड़ों को 3 दिन के लिए अंधेरे में रख दिया गया. नाउ प्लग द प्लांट्स इन सनलाइट. कीप द प्लांट्स इन द सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर. और फिर कुछ वक्त के बाद, मतलब 3 डेज के बाद, उसे 6 आवर के लिए धूप में रख दिया गया. Pluck a leaf from the plant and mark the green areas in it and trace them on a sheet of paper. उन्होंने उस चीजों को चेक कर लिया कि जहां जहां ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स पड़े थे. Dip the leaf in boiling water for a few minutes. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begin to boil. What happened to the color of the leaf? Leaf के color का क्या होगा? What is the color of the solution? Now dip the leaf in a dilute solution of iodine from a few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. Observe the color of the leaf and compare this with the trace of leaf done in the beginning. तो बेसिकली इसका यू कैन से आउटकम क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है? द ऑब्जर्वेशन इज दैट कि जो भी प्लांट था, जो भी पॉटेड प्लांट था, धूप में था तब तक वो खाना बना रहा था, लेकिन जब उसे धूप से हटाया गया, डार्क रूम में रखा गया 3 दिन के लिए, तो व्हाट विल हैपन कि वॉट एवर द इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने के प्रोसेस में जो जो इसेंशियल कॉम्पोनेंट होते हैं वो मिस होने लगे. सबसे इम्पोर्टेंट, सनलाइट मिस हो गई, एयर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है. तो सनलाइट इज द, ऑल द कंपोनेंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. धूप नहीं मिली इतनी देर तक, जब धूप नहीं मिली तो वो खाना नहीं बना पाए अपने. इसलिए किसी किसी स्पॉट पे ग्रीन एरिया दिख रहे थे और किसी किसी स्पॉट पे नहीं दिख रहे थे. What can you conclude about the presence of starch? Starch मतलब उसका food जो कि स्टोर फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज. ठीक, स्टार्च एक स्टोर फॉर्म में जो फूड रहता है, जो ग्लूकोज रहता है, उसे हम स्टार्च बोलते हैं इन वेरियस एरियाज ऑफ द लीफ. तो ये इसीलिए क्योंकि वो जब जितनी देर भी धूप ले पाया तो वो उतना ही ले पाया जितनी देर में उसको धूप मिली, उतनी देर उसने खाना बनाया. नेक्स्ट वन इज 6.2. 6.2 में they have taken two healthy potted plants which are nearly of the same size. In one of the potted plant, both the potted plants are covered with the proper bell jar. Now, what will happen in one of the bell jar? They put a watch glass containing potassium hydroxide, and the other one is only covered with a bell jar. तो देयर आर टू पॉटेड प्लांट, दो पॉटेड प्लांट थे, एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा और दूसरे में नहीं रखा. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है CO2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड. तो यू ऑल नो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फोटोसिंथेसिस का. ठीक है, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक बेल जार में जिसमें पॉटेड प्लांट है उसका एब्जॉर्ब कर लेगा, तो व्हाट विल हैपन, इस केस में भी वो स्टार्च नहीं बना पाएगा, खाना नहीं बना पाएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट जो CO2 है वो तो है नहीं इसके पास. इन B1 वो प्रॉपर तरीके से खाना बना पाएगा, स्टार्च बना पाएगा. डू बोथ द लीव शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च? नो, ए नहीं बना पाएगा और बी बनाएगा क्योंकि उसमें CO2 प्रेजेंट है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टोमेटा. Stomata, you have already done this part in class 9. What is stomata? There are few things which you already revised here, और जो पहले से आप पढ़ चुके हैं किसमें, क्लास 9 में. ठीक. What is stomata? Stomata is a small pores which are present, these are the tiny pores present on the surface of the leaves. And what is guard cell? It is the kidney shaped structure present on the stomata. Now write the function of the stomata. So these are the few questions which are already you have read in class 9. तो इसका रिवीजन जरूरी है क्योंकि पूछ सकते हैं बोर्ड में, पूछेंगे कि क्या स्टोमेटा किसे कहते हैं, गार्ड सेल किसे कहते हैं, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है. तो फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस.
तो ये जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द पोर्स हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। ये कौन कराता है? गार्ड सेल्स कराते हैं। गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं व्हेन वाटर फ्लोइंग टू देम एंड कॉजिंग द स्टोमेटा पोर टू ओपन। सिमिलरली पोर क्लोज हो जाती है जब गार्ड सेल्स क्या होते हैं? श्रिंक होते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टोमेटा, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कब? क्लास 9th में। नाउ द नेक्स्ट वन इज द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम लोग ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद से अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहते हैं। ठीक, और कुछ उनके ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिससे वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, और ग्लूकोज जब स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं तो उसको हम स्टार्च बोलते हैं। चलिए अब हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, दैट इज हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक्स आर ऑफ थ्री टाइप। पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इट इज। अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग और डेड सोर्स ऑफ फूड। ठीक, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म लिविंग सोर्स ऑफ फूड को खाते हैं या फिर डेड सोर्स ऑफ फूड को लेते हैं। ठीक है, और ये तीन तरीके के होते हैं। वन इज सेप्रोट्रॉफिक, अदर वन इज पैरासिटिक, एंड द थर्ड वन इज द हेलोजोइक। holozoic. The saprotrophic are those which uh, using the or taking their mode of nutrition with the help of the dead and decaying materials। जो भी dead and decay organism होते हैं और source of food होते हैं उनसे fulfill करते हैं। पैरासिटिक आर दोज जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह करके उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। एंड द होलोजोइक आर दोज हु यूज द सोर्स ऑफ फूड, जो कंप्लीट सोर्स ऑफ मटेरियल इंगल्फ करते हैं और खाते हैं, दैट इज होलोजोइक। सो हमको पता चल गया कि व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक एंड व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ऑर्गेनिज्म फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं? How do organism obtain their food? In single celled organism, that is unicellular organism में कैसे food gain करते हैं और obtain करते हैं? They use entire surface of the body, ठीक, अपना पूरी बॉडी यूज करते हैं ताकि वो फूड को इंगल्फ कर ले और खा ले और उसको एब्जॉर्ब कर सके। दूसरे मल्टीपल सेल्ड होते हैं, दैट इज मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। दे यूज कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है तो दे नीड अ कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड passage for the obtaining the food। तो विल सी द एग्जाम्पल जो आपके कोर्स में है, दैट इज अमीबा। अमीबा के एग्जाम्पल से यू विल सी कि किस तरीके से दे टेक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, द न्यूट्रिशन इज टेकन by like this is amoeba, this is nucleus, the food is present here, food particle। तो what will happen, ये जो अमीबा है ये सूडोपोडिया बना देंगे। दिस इज द टाइप ऑफ यू कैन से प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन है ये, ऐसा शेप ये निकालता है, इसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। और ये किस वजह से निकल पाता है? बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द अमीबा। अमीबा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो सूडोपोडिया इजिली बना लेता है, फूड को कवर कर लेता है और अपने अंदर रख लेता है, और फिर धीरे धीरे वो फूड उसमें डिजोल्व हो जाता है फूड वैक्यूल में, और फिर वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है और इस तरीके से उसको एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग में कैसे न्यूट्रिशन हो रहा है। Whatever we eat need to be absorbed properly in our body। ऑब्वियसली हम जो भी खाते हैं वो अच्छे से प्रॉपरली एब्जॉर्ब होना चाहिए हमारी बॉडी में। तो वो एब्जॉर्ब कैसे होगा? फॉर डैट हमारे लिए पूरी बॉडी में ऊपर वाले ने एलिमेंट्री कैनाल दे रखा है। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। अब सबसे बड़ी बात है खाना, फूड, इसको एब्जॉर्ब करना है। अब जब फूड को एब्जॉर्ब करना है तो इसमें कुछ प्रोसेस है बिफोर द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव एंजाइम यू कैन से वो उस पर ऐड करें, उससे पहले फूड के साथ दो तीन कंडीशन है।
कैसा होना चाहिए फूड? Go through the buccal cavity, but before this our teeth play a very important role in this, that is by chewing. अच्छे से खाने को चबा चबा के खाना चाहिए ताकि खाना के पीसेस स्मॉल पीसेस में रहें, पार्ट्स उसके पार्टिकल्स, और स्मूथ टेक्सचर में रहें। टेक्सचर, ये दो कंडीशन है विच शुड बी फुलफिल्ड एक प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए। खाना स्मॉल पार्टिकल्स में होने चाहिए और स्मूथ टेक्सचर में होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एंजाइम। बिफोर स्टार्टिंग द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, हमें ये पता होना चाहिए कि एंजाइम किसे कहते हैं। ठीक है, एंजाइम किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इट इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एक ऐसा केमिकल होता है, ऐसा हार्मोनल केमिकल होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड। किसको? सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू द सिंपलर वन। फूड के फूड को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर वन में। ठीक है, तो वो उसको हम एंजाइम कहते हैं। तो हम जितनी भी चीज खाते हैं उस पे एक एंजाइम लगता है जगह, जहां जहां डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक आउटलाइन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, कहाँ कहाँ कौन सा एंजाइम लग रहा है और किस तरीके से चीजें डाइजेस्ट होकर के हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर वन बनती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल। ओके, नाउ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, it first start from the mouth, that is the from the buccal cavity, from the mouth it is start. In the mouth there is a, जब हम लोग फूड खाए हम लोग ने, टीथ ने उसमें हेल्प करी। क्या हेल्प करी? उसको अच्छे से च्यू करा प्रॉपरली और उसको स्मॉलर पीसेस में किया, स्मूथ टेक्सचर में किया। जब ये दोनों काम फूड के साथ हो गए, देन व्हाट विल हैपन? देयर इज अ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अ माउथ। वो क्या करता है, जैसे ही फूड टेक्सचर में और सलाइवा में अच्छे से वो मिक्स होगा, उससे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, सिक्रीट करने लगता है सलाइवा। सलाइवा को सिक्रीट करता है और सलाइवा में क्या प्रेजेंट रहता है? सलाइवरी अमाइलेज, ये एंजाइम है। ठीक है, थिंक आई शुड यूज अ डिफरेंट कलर। ओके, सो दिस इज अ एंजाइम, इसको एंजाइम कहते हैं। ये पहला एंजाइम है जो हमारे बकल कैविटी माउथ से स्टार्ट होता है। किससे? जो कि उसमें सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। और सलाइवा ग्लैंड कहाँ से रिलीज होता है? फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स। नाउ आफ्टर दिस प्रोसेस, जब यहाँ पे फूड सलाइवरी अमाइलेज से सलाइवा से अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, देन इट मूव थ्रू द ईसोफेगस, फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस जब ये जाता है, तो ईसोफेगस में फ्लेक्सिबल टाइप का देर इज अ मस्कुलर structure. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically. ये जो इसोफेगस में जो मसल्स होती है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। और इस किस लिए रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है? बिकॉज इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, ताकि खाना आगे चला जाए। और इस मूवमेंट को, जिससे खाना आगे जाता है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? दिस इज द मूवमेंट बाय द इसोफेगस कैनाल, दे हैव अ मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमिकली। किस लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है? कि जो भी ये खाना पास ऑन हो जाए वो इजली आगे बढ़ जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट ऑर्गन इज स्टमक। जब खाना आगे बढ़ करके स्टमक में आता है तो व्हाट विल हैपन? फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द इसोफेगस। स्टमक एक लार्ज बॉडी ऑर्गन है और फूड जैसे ही इसमें एंटर करता है, then it is mixed the food properly with the more digestive enzyme. The digestion is stomach in taken care by gastric gland. Gastric gland उसका ख्याल रखता है, वो वर्क करता है। तो कैसे वर्क करेगा? क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो वॉल की स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, वॉल के स्टमक में प्रेजेंट रहते हैं एंड these release gastric juices. First one
it release pepsin, then HCl, then mucus. तो ये तीन gastric juices और you can say enzymes are there in the stomach जो कि आगे फर्दर खाने को डाइजेस्ट करती है। सबसे पहले जो HCl होता है या फिर पेप्सिन को ही देख लेते हैं। अब पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इट इज द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट वन इज द HCl। HCl का क्या काम है? HCl क्रिएट्स अ एसिडिक मीडियम जो फैसिलिटेट करता है मतलब तेज करता है किसका एक्शन? पेप्सिन का एक्शन। ये इसके एक्शन को बढ़ाने के लिए फूड को एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है। जो खाना आ रहा है उसमें HCl मिल जाता है। तो मिलने के बाद क्या करता है? ये मिल जाता है ताकि इजीली पेप्सिन अपना और तेजी से काम कर सके प्रोटीन को तोड़ने में। ठीक। नेक्स्ट वन इज द म्यूकस। म्यूकस एक टाइप की प्रोटेक्टिव इनर लाइनिंग है स्टमक की जो स्टमक को बचाती है। किससे बचाती है? एसिडिक मीडियम से बचाती है। ठीक। और उस टाइम भी बचाती है जब हम कुछ नहीं खाए होते, हमारा पेट एम्प्टी रहता है और HCl रिलीज होता है, सोचता है कि खाने को डाइजेस्ट करें लेकिन आपने कुछ खाया नहीं होता है। तो उस टाइम जो HCl रिलीज होता है और उसको खाना नहीं मिलता तब भी म्यूकस हेल्प करती है ताकि स्टमक लाइनिंग प्रोटेक्ट हो सके और वो डैमेज ना हो। और यही होता है, अगर आप खाना टाइम से नहीं खाएंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं खाएंगे, HCl तो अपने टाइम से नहीं रिलीज होगा, लेकिन अगर उसे फूड नहीं मिलेगा तो वो म्यूकस को डैमेज कर देगा और इससे बहुत सारी डिजीज हो जाती है, एसिडिटी होने लगती है, अल्सर की प्रॉब्लम होती है। चलिए, नेक्स्ट ऑर्गन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ने से पहले, उसके प्रोसेस से पहले हम देखेंगे लीवर और पैंक्रियास कैसे वर्क करता है। लीवर के पास बाइल जूस होता है। ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। पैंक्रियास जो होता है उसको पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। वो ट्रिप्सिन एंड लाइपेज सिक्रीट करता है। ठीक, ये दोनों एंजाइम लग रहे हैं। आप समझिए कि एंजाइम कितने ढेर सारे बायो कैटलिस्ट होते हैं जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं ताकि इवेंचुअली वो लास्ट में जा करके, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके एब्जॉर्ब हो जाए। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वेयरएज लाइपेज फैट को इमल्सिफाई करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब यहाँ पे जो मेन है इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है। तो जब ये एंजाइम रिलीज होता है तो व्हाट विल हैपन, ये एक मिरेकल टाइप का करता है, मतलब वो फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन यू कैन से न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, वो इस इतने एंजाइम से रिलीज हुई है। और रिलीज होने के बाद उस पर वर्क करने के बाद कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में जो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। फैट को कन्वर्ट करती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। एंड प्रोटीन को कन्वर्ट करती अमीनो एसिड। तो दीज आर द इसेंशियल पार्ट्स जो कि इसेंशियल फॉर्म ऑफ यू कैन से कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन जो कि एब्जॉर्ब होते हैं। अब ये इसेंशियल चीज़ें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई इन सब के फॉर्म में। नाउ वी मूव टुवर्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जितने भी एक्सेस वाटर होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है और फिर वट एवर द वेस्ट मटेरियल्स आर देयर वो स्टोर हो जाते हैं रेक्टम में और फिर वो एनएस से रिमूव हो जाते हैं। सो वी स्टॉप हियर। we have finished the human digestive system, or you can say human nutrition in human. In the next class we start a topic that is respiration. Okay, thank you so much for watching. अगर वीडियो समझ में आ रही है तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।